हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरवसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवसे। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टार्टेड द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर हैविंग द नेम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड in previous lecture we are study the classification of halogen derivative of alkane, and then the nomenclature of halogen derivative of alkane, and then isomerism. In today we are discuss about the nature of CX bond or RX bond. Nature of RX bond means RX means it is the alkyl halide. इसमें RX इस दोनों का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। R मीन्स अल्किल ग्रुप का कैसा होता है, और X मीन्स हेलोजन। जितने भी सारे हेलोजन प्रेजेंट है इन पीरियोडिक टेबल उन सब का नेचर कैसा होता है ये हम आज देखने वाले हैं। तो ऑल द हेलोजन आइटम इन द alkyl halide it is present in the 17th group in the periodic table. उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, हेलोजन आइटम। कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। These all halogen atoms are present in the 17th group in the periodic table. इसको क्या कहते हैं, हम हेलोजन सीरीज कहते हैं। अगर यहाँ से अल्किल हलाइड हमारा बनता है तो वो कैसा होता है, RX इट इज द अल्किल हलाइड। तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लोरीन ऊपर रहता है, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। ऐसी पोजीशन है उनकी पीरियोडिक टेबल में। दैट इज इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका इससे ज्यादा है, और नीचे आओ तो इसका और बढ़ेगा, और आगे ना हम टुवर्ड्स द डाउन ऑफ द ग्रुप पीरियोडिक टेबल गए तो उसका अगेन ज्यादा ना एटॉमिक नंबर आएगा। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा मतलब इसकी जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ जाती है। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं अलोंग द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल तो फिर इनकी साइज भी बढ़ जाती है। साइज बढ़ जाती है तो उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अगर हम ऐसे नीचे गए तो इनकी क्या बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन की तो फिर हमने यहाँ पे अगर RF लिया तो ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ वेरी लेस बॉन्ड लेंथ। अगर हमने RI लिया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। When we are going to the down in the group of 17 in the periodic table, then the fluorine, bromine and iodine. These are halogen series we can see, and then the halogen atom having the less atomic number, hence it is the less atomic size, hence it is the very closely bound to the carbon atom in the alkyl group, and hence the bond length is very less. RF having the bond length is very less, and it is the most electronegative, hence it is the most electronegative atom. It is most electronegative than chlorine, bromine or iodine, or also it is the in all periodic table the fluoride atom it is the most electronegative in the periodic table. Why it is most electronegative? Because their atomic number is 9. When we go along the down to the group 17, then the atomic size of this fluoride, bromide and iodide increases. When the atomic size increases, then the bond length between R and X, that is R and X is also increases. That is the fluorine is very reactive atom than chlorine, bromine and iodine. Hence bond length increases. When we polarize this R and X, then the R that is R को अगर हमने मिथिल लिया दैट इज C कंसिडर करते हैं हम X, और यहाँ पे क्लोरीन भी हो कार्बन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन एटम बॉन्ड हो सकता है इस कार्बन को। तो फिर हमने यहाँ पे जब पोलराइज किया तो एज कंपेयर टू कार्बन आइटम द हेलोजन आइटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस it is being a partially negative charge atom, and it is being partially positive charge atom. It bears partially positive charge, it bears partially negative charge.
That means when this Rx bond or CX bond break, that time the electron is taken by halogen atom and it become electron deficient species. It is partially, but it is partially when the large number of series of carbon atom is attached to that carbon, then it become partially polarized, partially positive charge, and it become partially negative charge. Hence we can Ri, when Ri is bound, then it is the bond length increases. When we go down to the group, this group, then the bond length is increases and iodine is easily to break this bond because their electronegativity is also increases when we go down this group. Hence this is our nature of Rx bond. Okay? And then their electronegativity is more when we go in the electronegativity decreases, and electronegativity decreases, that means the Ri or Ci bond is very weak as compared to Cf or Rf is very weak bond as compared to Ci bond because the atomic size, atomic number increases, hence atomic size is also increases. Atomic size increases, then bond length decreases. Hence the Rci is very weak bond, as compared to Cf. Are you getting this? इतना ही है इसमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड में all halogen atoms are present in the 17th group in the periodic table, that is the fluoride, chloride, bromide or iodide. Fluoride, it is the more electronegative atom in the periodic table. When we go downward direction in the periodic table in the 17th group, then the electronegativity is decreases. Electronegativity decreases. Electronegativity decreases and bond length increases. Bond length increases means the size of this iodide become very greater as compared to bromide, chloride or fluoride. Hence the Ci is very weak bond as compared to Cf. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड होने के बाद. Methods of preparation of Rx. हमको क्या करना है, अब केमिकल रिएक्शन में हमको Rx बनाना है. दैट इज इन प्रोडक्ट इज हमेशा के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, Rx रहेगा. यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट और जो भी कैटालिस्ट आएगा इसके ऊपर प्रोडक्ट हमेशा Rx आएगा हमारा प्लस साइड प्रोडक्ट. यहाँ पे हमारे क्या सबस्ट्रेट, जो भी हम सबस्ट्रेट लेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ Rx, जो सबस्ट्रेट लेंगे तो उसके ऊपर जो भी रिएजेंट का अटैक होने वाला है वो रिएजेंट हमारा चेंज हो जाएगा. सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा तो रिएजेंट भी चेंज हो जाएगा. अगर ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो साइड प्रोडक्ट भी हमारा चेंज होएगा. बट प्रोडक्ट दैट इज Rx ये हमारा बनना चाहिए, क्योंकि हम क्या लर्न कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ Rx. इसका मीनिंग है कि हमारे प्रोडक्ट में हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, अल्किल हैलाइड मिलने वाला है. सबस्ट्रेट रिएजेंट और साइड प्रोडक्ट जो भी चेंज होंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाला, हमको ये प्रोडक्ट मिलना है. तो डिफरेंट जितने भी सारे कंपाउंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां से हम डिफरेंट कंपाउंड लेंगे और वहां से अल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं. तो पहले जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे फ्रॉम अल्केन, यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, अल्केन. फर्स्ट मेथड लेते हैं हम
फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हम क्या बनाने वाले हैं, अल्किल हैलाइड। फर्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम अल्केन। फर्स्ट है फ्रॉम अल्केन, यानी कि हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्केन, और सबस्ट्रेट के हिसाब से हमारा क्या होगा, रिएजेंट भी चेंज होगा, रिएजेंट चेंज होगा तो कैटेलिस्ट भी चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलने वाला है, अल्किल हैलाइड दैट इज आरएक्स। और ये दोनों चेंज हो गए तो साइड प्रोडक्ट भी हमारा चेंज होने वाला है। तो फ्रॉम अल्केन, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, आरएच, ये लेंगे हम अल्केन। इसका क्या करने जाने, हैलोजनेशन, हैलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2, इसको क्या कह सकते हैं हम, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन भी कह सकते हैं, फ्रॉम अल्केन, और हैलोजनेशन ऑफ अल्केन दैट इज सबस्ट्रेट हमारा क्या रहेगा, अल्केन रहेगा। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन मीन्स क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहेगा। नेशन मीन्स ये हम क्या करने हैं, इसके ऊपर रिएक्शन करने वाली है इसकी, दैट इज क्या कहेंगे हम इसे, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन दैट इज RH प्लस X2। इसके ऊपर जो भी कैटालिस्ट चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू, अगर हमने क्लोरिनेशन किया तो Cl2 आएगा, अगर हमने ब्रोमिनेशन किया तो Br2 आएगा, और आयोडिनेशन किया तो I2 आएगा, और उसके हिसाब से क्या, उसका कैटेलिस्ट भी हमारा चेंज होने वाला है। ये हमारे क्या है, जनरल रिएक्शन है, RH प्लस X2 इट गिव्स द RX प्लस HX। ये क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट, ये रहेगा हमारा साइड प्रोडक्ट, ये रहेगा हमारा सबस्ट्रेट, और ये रहेगा हमारा रिएजेंट। बट अकॉर्डिंग टू दैट रिएजेंट वी कैन चेंज द कैटेलिस्ट। तो फर्स्ट ये क्या रहेगी, व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद हैलोजन it gives the, in the presence of catalyst it gives the alkyl halide and side product that is the HX। तो पहले हम इसमें क्या देखेंगे, क्लोरिनेशन। ये क्या है हमारी क्लोरिनेशन, that is the chlorination means addition of Cl2 on alkane। ये क्या रहेगा हमारा, अल्केन प्लस क्लोरिनेशन मीन्स Cl2। यहाँ पे कैटेलिस्ट क्या होगा, यूवी लाइट और डिफ्यूज्ड सनलाइट, UV light or diffused sunlight, it gives the RCl plus HX। Are you getting this? When alkane is reacts with chlorine in presence of UV light or diffused sunlight, then it gives the alkyl chloride or HX। इसको क्या कहेंगे हम, alkyl क्लोराइड, और इसे अल्केन, और इसे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे लिखती हूँ इसका एग्जांपल, RH दैट इज CH3Cl प्लस Cl2, it gives the UV light or diffused sunlight, it gives CH3Cl plus HCl। यहाँ पे क्या लिया हमने, मीथेन लिया, मीथेन से हमने क्या बनाया, मिथिलो क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। ये इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट इज फाउंड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या, हम यूवी लाइट एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो यूवी लाइट यूज करते हैं मतलब ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, यहाँ पे क्या, पहले फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑन दैट कार्बन एटम। ये हम देखते हैं,
मैकेनिज्म कैसे होता है, फ्री रेडिकल, दैट इज फर्स्टली CH3 फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल प्लस Cl2 फ्री रेडिकल और Cl2 फ्री रेडिकल, और बाद में ये फ्री रेडिकल बाहर निकलते हैं और CH3Cl हमें मिलता है। Hence it is called as photochemical reaction और thermal reaction कहते हैं। It is not very selective method to prepare the methyl chloride. Why it is not very selective? Because the UV light or diffused sunlight when we passing, then the again haloalkanes are made. It is very more possibility. मतलब क्या कि अगर हमको इतना ही प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम उस रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जब यूवी लाइट जब हम उसके ऊपर इस कंपाउंड के ऊपर पड़ती है तो फिर ये मिथिल क्लोराइड इतने पर ही रिएक्शन नहीं स्टॉप हो जाती, अगेन उसका क्लोरिनेशन होता है, मतलब Cl2 और बन जाता है और अगेन यूवी लाइट उसके ऊपर गिरती है और बाद में क्या -HCl बन जाता है और बाद में CH2Cl2 बनता है। अगेन यहाँ से फिर Cl2 बन जाता है, तो पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है, उससे डाइक्लोरोमीथेन। अगेन यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट Cl2 -HCl बन जाता है और CH-Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन क्या बन जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगेन यूवी लाइट उसके ऊपर पड़ती है, Cl2 -HCl हो जाता है और CCl4 ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं हम इसे, और टेट्राक्लोरोमीथेन भी हम इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या, मीथेन CH3H मीथेन, Cl2 UV light, in presence of UV light it become methyl chloride। अगेन उसके ऊपर UV लाइट पड़ती है तो फिर क्या, डाइक्लोरोमीथेन। अगेन UV लाइट हो जाती है तो फिर क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन। Means it is a spontaneous reaction, it is not stop for that। all hydrogen of alkane is subtracted by chlorine। means वहां पर जितने सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं उस सबको क्या क्लोराइड आइटम क्या करता है, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोराइड ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। कहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है कि वहां पे एक ही हाइड्रोजन नहीं रह पाता और ऑल क्लोराइड आइटम आते हैं और विल बिकम टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। Hence it is not very selective method to prepare the monochloromethyl chloride। It is not very selective method। It is not selective method। ये selective method भी नहीं है। और इसकी अगर हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन देखी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, तो फिर क्या, टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। वाई टर्शियरी? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहाँ पे हमने 3 डिग्री अल्केन लिया, CH3, यहाँ पे हमने 3 डिग्री अल्केन लिया, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और रिएक्टिविटी हमने हैलोजन देखी तो क्लोराइड इज वेरी रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। पहले ही हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड में देखा है कि फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड की क्या रहती है, रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू आयोडीन। इसका मतलब क्या, एटॉमिक साइज जिसकी कम होती है वो क्या रहता है, ज्यादा रिएक्टिव रहता है, जो भी एलिमेंट रहता है वो। तो ये क्या, इट इज नॉट वेरी सिलेक्टिव मेथड बिकॉज इट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमने यूवी लाइट पास कर दिया उस कंपाउंड से तो वो क्या स्टॉप नहीं होती है मिथिल क्लोराइड बनने के बाद, वो अगेन उससे क्या बनाती है, डाइक्लोरोमीथेन, अगेन उससे क्या बनाती है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और अगेन टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, और इसको हम सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इट इज नॉट सिलेक्टिव मेथड। hence we can see the again second method having the name bromination।
सेकेंड मेथड है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट है फ्रॉम अल्केन, और क्या कहते हैं हम, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। उसमें हमने पहले क्या देखा, क्लोरीनेशन देखा, फर्स्ट ए देखा क्लोरीनेशन, अब सेकेंड बी देखेंगे ब्रोमिनेशन। ये आप वन बाय वन नोट कीजिए ताकि आपकी लिंक लग जाए, लिंक लगे इसलिए क्योंकि ये क्लोरीनेशन अभी हमने जो रिएक्शन लिया वो बोर्ड पे नहीं इतना नहीं हो सकता, इसलिए आप नोट कीजिए इसे। अब हम सेकंड देखने वाले हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, दैट इज द RH, it is alkane. Bromination means use Br2 as a reagent in the presence of AlBr3, that is Lewis acid. It become the RBr plus HBr. यहाँ पे हमने क्या कैटेलिस्ट यूज किया है, it is AlBr3, it is used, it is a Lewis acid, it is used to found the bromonium ion. यहाँ से क्या होता है, AlBr3 प्लस Br2 की रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ से क्या मिलता है हमें, AlBr4 माइनस प्लस Br प्लस, ये क्या रहता है, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, और इस ब्रोमोनियम आयन और R क्या रहता है, H प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसकी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन ब्रोमाइड आइटम, इसको क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाती है। इसीलिए हम क्या यहाँ पे क्या यूज करते हैं, AlBr3, दैट इज द लेविस एसिड, इसको क्या कहते हैं हम, लेविस एसिड कहते हैं। इसमें क्या होता है, लेविस एसिड की और Br2 की रिएक्शन बन जाती है, यहाँ से क्या AlBr abstract कर AlBr3 abstract one bromide ion and it become AlBr4 plus Br plus, यानी there is a formation of bromonium ion and bromonium ion यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे substitution reaction हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, RBr, it is electrophilic substitution reaction. Why it is electrophilic? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सी स्पेसीज है हमारी, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हम, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहता आता है, और यहाँ पे क्या, वन हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय वन ब्रोमाइड आइटम, तो उसको क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3CH2H, दैट इज इथेन प्लस Br2 in presence of AlBr3, it gives the CH3CH2Br plus HBr। इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम, इथिल ब्रोमाइड, इसका आपको एग्जाम में रिएक्शन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, phenethene is reacts with bromine in presence of AlBr3, it gives the ethyl bromide and side product that is the HBr। इसका explanation, it is a very selective method to prepare the alkyl halide or ethyl bromide, any alkyl halide but only ethyl bromide, it is very selective method to make the alkyl halide। Why it is very selective? Because it is not spontaneous reaction और इट इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, यील्ड जो मिलता है वो अच्छा मिलता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज, इट इज सिलेक्टिव मेथड, इट इज सिलेक्टिव मेथड, इट इज सिलेक्टिव मेथड टू प्रिपेयर अल्किल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ब्रोमीन की, इसलिए इट इज वेरी सिलेक्टिव मेथड, इट इज जनरली यूज्ड टू मेक द अल्किल ब्रोमाइड। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट है आयोडीनेशन। सी है आयोडीनेशन।
In iodination, alkane reacts with iodine. It gives the Ri plus alkyl iodide or HI. When alkane reacts with iodine, it gives the alkyl iodide plus side product HI. But it is a very reversible reaction. अगर यहाँ पे because the size of iodine is very large, iodide atom. In nature of CH bond, we see the when the atomic number increases, then the atomic size of that element is also increases. Hence, it is a very large size of iodine. Hence, Ri bond break easily and to again make I2. यहाँ पे क्या बन जाता है, इस दोनों की रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होने के बाद Ri भी बन जाता है, बट इट इज अ वेरी वीक बॉन्ड बिटवीन R एंड I. तो फिर क्या हो जाता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और इस I और इस I के अगेन रिएक्शन हो जाती है और I2 बन जाता है. Hence to avoid this, hence it is a reversible reaction. Hence to avoid this reversibility, we use the mild oxidizing agent. यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, तो इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. Hence to avoid this reduction of this Ri, we use the mild oxidizing agent having the name HgO, HiO3 and HNO3. HNO3, that is dilute HNO3, dilute nitric acid, HiO3 और HgO. ये हम mild oxidizing agent, ये क्या है सब, mild oxidizing agent. यहाँ पे क्या रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए हम ये क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. और इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने के बाद हमारी क्या रिएक्शन होती है, देखते हैं हम. RH plus 2I2 plus HgO, it gives the, in presence of heat, it gives 2Ri plus Hg(I2) plus H2O. 2Ri, that is alkyl iodide. Next है RH plus I2 plus HiO3. HiO3 यहाँ पे Ri plus H2O. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया. तो ये कितने बन गए, 6 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे 5 लिया तो ये 5 और ये 1 6 बन जाएगा आयोडीन आइटम. तो यहाँ पे अगर RH 5 लिया तो यहाँ भी 5, यहाँ पे 4. क्या है, फेन अल्केन इज रिएक्ट विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, इट गिव्स द अल्किल आयोडाइड प्लस वाटर. नेक्स्ट RH प्लस I2 प्लस HNO3. यहाँ पे क्या बनता है, Ri प्लस NH3 प्लस H2O 3. हाइड्रोजन हो गया था 6 7 8 9 होते हैं. यहाँ पे लेंगे 8, अगर यहाँ पे 8 लेंगे तो आयोडीन कितने, 4 बने. यहाँ पे क्या, alkyl when alkane reacts with iodine in presence of nitric acid, it gives the Ri plus NH3 plus 3H2O. ये क्या हुआ हमारा आयोडिनेशन. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एक पहले का CH3H, that is methane 2 plus 2I2 in presence of HgO and heat, it gives the 2CH3I प्लस Hg(I2) प्लस H2O. यहाँ पे क्या हमारे साइड प्रोडक्ट क्या आएंगे, सब साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे. सिर्फ यहाँ पे क्या हमारा प्रोडक्ट चेंज होने वाला है. तो इसे हम क्या कहते हैं, आयोडिनेशन रिएक्शन. ये हमने सिर्फ एक ही मेथड देखी है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन. अब वहां पे क्या आता है, क्लोरिनेशन फर्स्ट, सेकंड आता है ब्रोमिनेशन और थर्ड आता है आयोडिनेशन. क्लोरिनेशन में क्या हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, यूवी लाइट और डिफ्यूजर सनलाइट. ब्रोमिनेशन में लेविस एसिड, दैट इज AlBr3. और आयोडिनेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द HgO
HiO3 और HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू change the catalyst, according to that catalyst we can prepare this alkyl halide by using chlorination, bromination और iodination from alkane। ये हमारी फर्स्ट मेथड हुई है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। बाद में हम उसकी जो सेकंड मेथड देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन। यहाँ पे हमने क्या सबस्ट्रेट यूज किया था अल्केन, वहां पे हम सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं अल्कीन। आज हम यही पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।